Good afternoon, everyone. Let's begin with a new topic, liberal constitutionalism for UGC political science. And this topic belongs to the chapter Constitution and Constitutionalism. Now, liberal constitutionalism, it means constitutionalism or the rule of law, the belief in the rule of law through the bedrock of liberal principle. Now, let's break it down. So, this word, it is made up of two different parts. First, there is a political philosophy, liberalism, and then there is a constitutionalism. So first, let's have a quick recap of this term. Constitutionalism is the belief in the rule of law, and rule of law itself is the commonly agreed framework for governance. So that governance, that agreement has achieved by the people by sitting together, by negotiating, by deliberating, and by figuring out what works for them in their collective capacity. So that's common framework for governance. That's what rule of law is. So constitutionalism is belief in this common framework. Then to manifest this belief, we created constitution, which is the live representation, the physical structure of rule of law that we call constitution. Now, ये हो गया basic. उसके बाद when we chart it out through the bedrock of liberalism, so we must stroll through this political philosophy. Now, liberalism in itself, it has its own history, and then it's a separate part of political evolution. Now, when I say political evolution, and since you have already mastered the basic concepts, so political evolution वो आप सबको पता है कि शुरू से एंशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम पे जो पोलिटिकल सिनेरियो है, पोलिटिकल लैंडस्केप, इट हैज टू इवॉल्व थ्रू मल्टीपल ट्रायल्स एंड एरर्स. सो उसी में लिबरल फ्रेमवर्क जो है, इट स्टार्टेड जस्ट आफ्टर द डार्क एजेस ऑफ मिडीवल पीरियड. फिर उसके बाद एनलाइटनमेंट आया, रेनेसा आया, और रेनेसा के पीरियड में ही जो लिबरल पोलिटिकल फिलॉसफी है उसको एक शेप मिला. नाउ then when we talk about the key tenets of liberalism, so these tenets are usually oriented around और इसको breakup करें, so it's about the source of that political philosophy, source of political power, and then the target, source, target, and finally the purpose. जो आपको political philosophy में कई बार ये चीज सामने आई है, पावर के कंसेप्ट सामने आई है. That political power, it has these three domains. First, source, वो power का source कहाँ है. Then target, वो power कहाँ पे जा रही है, on which entity it is inclined upon. And then finally the purpose of that power, purpose of that political philosophy. So liberalism की बात करते हैं तो the source, it is in the enlightenment ideals. So we can club them as good political ideals. Then when it comes to the target, the target of political liberalism, it is the individual. यानी political power अगर आए, अगर वो होनी चाहिए, and if we are taking a political power for ourselves, तो उसका center, उसका target individual होना चाहिए. And finally जब purpose की बात करते हैं तो इन दोनों से ही सामने आ जाती है. First, the key enlightenment ideals, reason, rationality, scientific bent of mind, इंडिविजुअलिटी, प्राइवेट प्रॉपर्टी. फिर पर्पस भी उनका यही है, द मॉरल, एथिकल, फिजिकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, spiritual advancement of individual. So it's about the upliftment of individual. So ये basic tenets हैं liberalism के. And now let's club them up. So liberalism, its key tenet are about rationality, then individuality, the power of individual, private property, individual rights, and the welfare, individual welfare. So क्योंकि जो टारगेट है वो इंडिविजुअल है, सो ये लेमन पर्सपेक्टिव में these are the liberal tenets. और फिर जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, इट मीन्स द बिलीफ इन द रूल ऑफ लॉ. यानी if rule of law has to exist
if any kind of state or any form of government has to exist, then they cannot shy away their role that has been listed out by the liberalism, which is the welfare of individual, which is the protection of private property of the individual, of bestowing fundamental rights and basic rights to the individual, to the moral and physical security of that individual. Now that changes everything. फिर उसके बाद अब हमारे पास जब रूल ऑफ लॉ आ गया, so rule of law is just a belief. When I say rule of law, so it's that idea, and that idea got manifested in constitution. So that's why constitution and constitutionalism both come together, because both are the same thing. One is the belief, and second is the manifestation of that belief. So when we talk about constitution through the liberalist lens, so it means that constitution will create a separate authority, a separate organization to look after the whole law and order machinery. So that machinery, that organization is the state, and then that state will have to keep the individual in center. Now state का काम जो है, it is to protect the private capacity of an individual, और private capacity में उसकी life आ जाती है, उसकी liberty आ जाती है, then security आ जाती है, and then ये जो private capacity है multiply by the number of individuals, so we will have a collective framework, and that's what liberal constitution looks alike. Now जो आपको ये बेसिक आइडिया दिया है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का या लिबरल प्रिंसिपल्स का, सो ये आपको इसके बाद समझ में आएगा कि किस तरह से लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इट ट्राइज टू सीक अ बैलेंस बिटवीन द कलेक्टिव एंड द इंडिविजुअल, बिकॉज हर स्टेट के अंदर कोई सिर्फ एक इंडिविजुअल तो है नहीं, एंड देन देयर इज अ डाइवर्सिटी. फिर उस डाइवर्सिटी में देयर आर मल्टीपल डिमांड्स, मल्टीपल एस्पिरेशंस, मल्टीपल एथनिसिटीज. सो यहाँ पे even through the individual lens, there is a multitude of those individuals, multitude of individual demands that must be catered, and then there is a overall security of the nation itself. So यहाँ पे ये दोनों collective and individual, इन दोनों को balance करना जरूरी है, and that's where minority rights also come into picture, because minority are also individual. फिर यहाँ पे हम इसके हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल फाउंडेशन की बात करते हैं. सो अभी आपको आइडिया दिया है कि लिबरल प्रिंसिपल्स, दे आर सोर्स, दे डिराइव देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम द एनलाइटमेंट ट्रेडिशन ऑफ रैशनलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म. नाउ उसका मैं आइडिया देता हूँ एक. लेट्स स्टार्ट आवर ट्रेन फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, एंशिएंट, देन मिडीवल, एंड देन द मॉडर्न टाइम्स. सो since I teach world history, anthropology and political science, तीनों पढ़ाता हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे सकता हूँ कि किस तरह से पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो यहाँ पे इसी जर्नी में बहुत हद तक चेंज हुआ. So during the ancient time, so we can say it was the first taste of freedom, especially after the Neolithic period. So Neolithic period means when we freed ourselves from from fulfilling the basic necessities, from the stone age cave dwelling, stone age nomadism, घूम फिर के जब हम लोग we settle somewhere, and that's when the permanent settlement, जहाँ पे हम लोग सब एक जगह establish हो गए, then agriculture, domestication of animal, plants, ये सब आए, our tool sophistication also started. फिर उसके साथ जो टास्क डिफरेंशिएशन और भी शुरू हो गया, यानी जब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिल गई, फूड सिक्योरिटी मिल जाती है, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन इज न्यूट्रिशनली सिक्योर. देन व्हेन पॉपुलेशन इज न्यूट्रिशनली सिक्योर, सो इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई. और उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग नाउ वी हैव मल्टीपल हैंड्स फीडिंग फ्रॉम द सेम सोर्स. बट सिंस उस टाइम पे प्राइवेट प्रॉपर्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रिसोर्सेज भी अबंडेंट थे, एग्रीकल्चरल फील्ड तो जहां तक है ना, जहां तक नजर जा रही है वहां तक सब वो एक कम्यून लैंड ही है. तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी या फूड सिक्योरिटी जब इंश्योर हो गई और बहुत सारे लोग थे काम करने के लिए, सो ऑल दोज एक्स्ट्रा हैंड्स दे वर शिफ्टेड टू द टास्क
डिफरेंशिएशन सेक्शन। सो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं पहिए बना रहे हैं, कुछ लोग सिक्योरिटी की तरफ चले गए, कुछ लोग एग्रीकल्चर फील्ड वर्क की तरफ चले गए, कुछ लोग डोमेस्टिकेशन की तरफ चले गए, कुछ लोग टूल पॉलिशिंग की तरफ चले गए, कुछ लोग जो है जो कम्युनल हंटिंग या ग्रुप हंटिंग की तरफ चले गए, कुछ लोग हाइड क्लीनिंग की तरफ, कुछ वाइज पर्सन जो है दे स्टार्टेड टीचिंग, फिर जो वीमन एंड सम नॉट सो एबल बॉडीड पर्सन जो है वो केयरिंग वर्क में चले गए। तो इस तरह से टास्क डिफरेंशिएशन हो गया। और जब टास्क डिफरेंशिएशन हुआ तो सोशल कोहेजन इट बिकेम मोर एक्सेप्टेबल एंड नेचुरल, सॉरी ब्रेक के लिए। सो तो सोशल कोहेजन जो है वो एक तरह से बहुत नेचुरल सिनेरियो लगने लगा। इट्स लाइक समथिंग विच वाज टोटली आवर ओन। जैसे आज हमारे जो टाइम में है टास्क डिफरेंशिएशन जो है वो इतना नेचुरल है कि हम समझते भी नहीं है कि यस वी आर गोइंग थ्रू दैट स्टेज कि जहाँ पे टास्क जो है हर एक को अलग अलग अलॉट हो चुके हैं। हमें पता नहीं है फिर भी, लाइक आई एम ए टीचर, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, और फिर कोई मर्चेंट है, कोई ट्रेडर है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई डिप्लोमेट है। तो इस तरह से हम लोग अपने अपने टास्क में ऑलरेडी जा रहे हैं। लेकिन जब सबसे पहले ये चीज शुरू हुई थी स्टोन एज के टाइम पे, उस वक्त ये आइडिया कह सकते हैं कि ये आइडिया नेचुरली आया कि ठीक है इतने सारे लोग हैं तो टास्क डिफरेंशिएट कर देते हैं। लेकिन टास्क डिफरेंशिएशन के साथ ही अब हर कोई पर्सन जो है जो अपना अपना टास्क लेने लग गया, वो उसके अंदर स्पेशलाइज हुआ। फिर फैमिली यूनिट्स बन गई, फिर वही जो एक फैमिली प्रोफेशन बन गया। तो फैमिली प्रोफेशन के साथ ही उसी में से एक और टास्क निकल के आया, दैट इज अबाउट गवर्नेंस। सो एंशियंट टाइम में ये जो गवर्नेंस का है, सोशल सॉलिडारिटी है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है, इट हैज द विजडम क्राइटेरिया कि जो पढ़े लिखे हैं, जो उम्र दराज हैं, जिन्होंने बहुत सारी दिवाली देखी है, बहुत सारे है ना फाइट्स एंड रेड्स एंड डिजीज एंड ये सब देखा है एंड स्टिल सर्वाइव दोज थिंग्स, अब उनके अंदर काफी सारा नॉलेज है, काफी सारा विजडम है। तो उनको फिर ये काम दिया गया कि यू टेक केयर द गवर्नेंस एस्पेक्ट। तो शुरू में ये जो चीज स्टोन एज के बाद जब मेटल एज आया, मेटल एज के बाद वैदिक एज आया, हाँ अलग अलग जगह पे सिमिलर प्रोसेशन चलता गया। तो एंशियंट टाइम पे इट वाज द टाइम ऑफ ट्रायल एंड एरर। लेकिन मोस्टली पीपल बिलीव्ड इन वैल्यूज, पीपल बिलीव्ड इन द वर्ड्स ऑफ विजडम। Then the same task, the same words of wisdom, they created their own separate organization known as religion. Now, that religious organization, along with the those handling the governance sphere, the ruling class, now ये classes जो है, they started manipulating people. सो दैट वॉज द मिडीवल पीरियड। कि इस टाइम पे आते आते फिर ये दोनों जो है रूलिंग क्लास एंड द रिलीजियस क्लास, दोनों को पता है कि लोग हाँ उनकी बात मानते हैं, हाँ उनको कहेंगे तो लोग उन पर यकीन करेंगे, और लोग भी पढ़े लिखे नहीं हैं। एंड देन द कैपेसिटी ऑफ रीजन इट वाज ऑलरेडी डीवैल्यूड, बिकॉज मैनिपुलेशन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही था कि रीजन को खत्म कर दो तो लोग अपने आप ही क्वेश्चन नहीं करेंगे। सो द रीजन वाज एक्सटिंग्विश्ड, no rationality was there, everything was traced to and sourced from the religious practices, superstition. So that's why the medieval time is often a time of dark ages, क्योंकि उस टाइम एंशियंट से लेकर जो इवोल्यूशन था, द मटेरियल इवोल्यूशन, द प्रैक्टिकल इवोल्यूशन, द साइंटिफिक इवोल्यूशन, इट पीक्ड एंड इट फेस द वॉल, इट हिट वॉल। और वो वॉल थी कि अब अगर सोसाइटी को आगे जाना है, सोसाइटी हैज टू प्रोग्रेस, तो उसमें कुछ चेंजेस होने जरूरी है, स्पेशली साइंटिफिक रेवोल्यूशन होने जरूरी है। बट साइंटिफिक रेवोल्यूशन विदाउट रीजन वाज इम्पॉसिबल। देन इट्स लाइक वी आर परफॉर्मिंग क्वैकरी। जो ऑलरेडी सुपरस्टिशन चल रहे हैं उन्हीं को बार बार हम रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के अंदर उसी लूप में वी आर ट्रैवलिंग, वी आर जंपिंग, वी आर फॉलिंग। सो इसीलिए मिडिवल टाइम पे वो चीज आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि रीजन साइंटिफिक बैंड के लिए रीजन होना जरूरी है, रीजन यहीं पे बार बार मैनिपुलेट किया जा रहा था। बट अल्टीमेटली पीपल दे केम टू दिस एग्रीमेंट कि नहीं, सब काम सही से नहीं हो रहा है,
कुछ न कुछ गड़बड़ है। और यहीं पे फिर इसी डार्क टाइम से, इस अंधेरे से लोग बाहर आए, और उस अंधेरे से बाहर आने की जो प्रक्रिया है, जो रिवोल्यूशन है, इट्स कॉल्ड एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट एंड रेनेसां। सॉरी, आज कुछ ना कुछ बीच में आ रहा है। सो where I was at liberal, enlightenment and renaissance. सो यहीं पे फिर जो चीजें उस वक्त कम थी, जो एंशियंट से जो स्मूथली प्रोग्रेस होनी थी, इवोल्यूशनरी जो डायनामिक्स हैं, सो वो सब चीजें, रैशनलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, दोनों वहां पे फिर वो चीजें सामने आई। और रैशनलिज्म के अंदर फिर सब चीजें, रीजन हो गया, एंड राइट्स हो गए, साइंटिफिक इंक्वायरी हो गई, एम्पिरिकल स्टडीज हो गई। सो वो सब जो बहुत टाइम तक उस मेडिवल टाइम ने होल्ड करके रखा था, रोक के रखा था, वो सब वो चीजें सामने आ गई। और फिर उसी के साथ ही जो इससे पहले जो चर्च की और जो रूलिंग क्लास की जो अथॉरिटी थी, इट वाज आल्सो dismantled, एंड नाउ द अथॉरिटी वाज ट्रेस्ड फ्रॉम एंड गिवन टू द इंडिविजुअल्स। फिर यही आइडियल्स जो है वो अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर भी यही लिखे गए। और फिर उसी के साथ ही liberal principle, the enlightenment principle, they also got hold of the rule of law. So rule of law, again it means constitutionalism, दोनों सेम चीज है। सो यहीं पे फिर liberal principle के basis पे rule of law was created, a commonly agreed framework was created by people, so constitutions were written and fundamental rights were given. और फिर उसी टाइम पे जो इसको मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं या मॉडर्न एज कहते हैं, उसमें फिर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन थे, जैसे जॉन लॉक, द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर टू टॉक अबाउट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। देन Montesquieu, who talk about separation of power among different sections of or different units of state. फिर इमैनुअल कैन की बात करते हैं, who emphasize the dignity of individuals, that the state itself has no source of power other than the individual, because state itself is the product of individual aspirations. And if a state cannot maintain, if a state deliberately trample upon the dignity of individual, then that state has no right to exist. Then we come to Alex de Tocqueville, who warned about the tyranny of the majority. That even if the state is created, even if the rule of law exists, written constitutions are there, और उन्हीं constitution के अंदर fundamental right और ये सारी liberal बातें लिखी हुई है, but what if it turns into a lip service? Lip service means सिर्फ वो चीज दिखावे के लिए लिखी हुई है, but ultimately the state, it becomes a tyrant itself, because state is another task, another differentiated and specialized task, just quite eerily similar to the one we started in the Neolithic period. Our Stone Age ancestor, they created separate tasks to clean the hide or to group hunt the mammoths. तो उसी तरह से हम लोगों ने भी एक ऐसी टास्क क्रिएट की। सो अगर स्टेट एक टास्क है, देन दिस टास्क, it can be win over, or it can be overtaken by some unruly elements. और unruly elements कौन होते हैं? जिनके पास ऑलरेडी recognized पावर होती है, recognized form of power, like say money. मनी के बारे में सब जानते हैं कि it is a recognized form of power. मनी हो गया, वेल्थ हो गया, रिसोर्सेज हो गया, एंड ऑल फ्लोज फ्रॉम इट। लाइक जिसके पास वेपन नहीं है बट मनी है, तो वो मनी से वेपन्स खरीद सकता है। सो यहीं पे वो अनरूली एलिमेंट्स जो हैं, तो जो मेजॉरिटी है, तो उसमें फिर ये कह सकते हैं कि वी acquired this idea from our primate cousins, chimpanzees. Now यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ that chimpanzees were our ancestor or primates were. ये आइडिया जो है, बिकॉज आई ऑल्सो टीच एंथ्रोपोलॉजी, सो बहुत लोग में ये होता है, जैसे हिंदी में कई बार ये कोट आ जाता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। सो हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, बट हमारे और बंदर के पूर्वज एक ही थे। सो यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आता है। सो सिंपली कहें तो जब से ये दुनिया बनी है, तब से जितने भी एलिमेंट्स जो है, ऑल दीज एलिमेंट्स जो यहाँ पे आप देखते हैं, जिस भी शेप में हम देखते हैं,
all of them, they were forged in stars. Then when the stars go supernova, means when they explode, तो यही सब material जो है, it spreads out everywhere. Sometime it forms large lumps of matter, और वही lumps of matter later give way to large planets, और उन्हीं planets पे कोई एक अर्थ बन जाती है, उसी अर्थ से फिर लाइफ शुरू हो जाती है. सो सब सेम चीज है, सब एक ही है. स्टार्स हैं, स्टार themselves they form into the furnace of universe. सो आइडिया ये है कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है, जो मोबाइल लाइफ फॉर्म्स हम देखते हैं, घूमने फिरने वाले कीड़े मकोड़े से लेकर इंसान तक, सब के सब दे हैड अ वन एंसेस्टर. सबका एंसेस्टर एक सिंगल सेल थी. और फिर यही सिंगल सेल जो है, ये डिवाइड होते होते इट मल्टीप्लाइड, इट टुक डिफरेंट फॉर्म, इट इवॉल्व इन अ डिफरेंट वे ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस. और इस तरह से जो भी हम आज देखते हैं सब लाइफ फॉर्म्स, जो पेड़ के पत्ते, चिंपैंजी, पेड़ और हम कहें, और चलने वाली चींटियां, हम सब लोग जो है वी ट्रेस आवर ओरिजिन टू दैट लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर. सो उसी लाइन में ये चीज बढ़ निकलते निकलते हमारे और मंकीज, चिंपैंजीज, एप्स, इन सब में एक ही एंसेस्टर था जिनसे हमारी लाइन निकली है. और यही उनमें से एक लाइन जो है वो ह्यूमंस की निकली. तो यहाँ पे चिंपैंजीज हो गए, यहाँ पे गोरिल्लाज हो गए, यहाँ पे मंकीज हो गए, और सबके जो अल्टीमेट कोई यू नो एक ही एंसेस्टर था. और उन्हीं का फिर एक मैमल एंसेस्टर था, मैमल्स का ही फिर एक ये जो अल्टीमेट एंसेस्टर ये है ही है. एनीवे, तो ये आइडिया जो है, जो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा, दिस पावर हायरार्की, वो हमारे अंदर, वो हमारे कजिन्स चिंपैंजी उस इवोल्यूशनरी लाइन की है. बिकॉज हमारे और भी साथ में कजिन्स हैं ना, ओरेंगुटैन्स हैं, गोरिल्लाज हैं, बोनोबोज हैं, जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे. सो उन सब का अगर बिहेवियर पैटर्न कहें तो थोड़े थोड़े बिहेवियर पैटर्न सबके हैं. बट जो पावर हायरार्की है, जो पावर ग्रीड है हमारी, वो चिंपैंजी से जुड़ी हुई है. खैर, तो चिंपैंजी जो है दे आर ऑल्सो पावर लवर, द हायरार्की लवर. तो हायरार्की लवर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे अज्यूम दे आर सुपीरियर, एंड देन इफ दे अज्यूम दे आर सुपीरियर, देन समवन हैज टू बी द इंफीरियर. तभी वो इक्वेशन पूरी होगी. तो यहाँ पे उस इक्वेशन की जगह पे कोई कोई एंटिटी आती है. So in modern times, yeah, in practical terms, it is usually the majority. Again, that chimpanzee brain, that majority seeks someone to be placed in the inferior positions, to be placed at the inferior position, and it is usually the minority. और यही चीज एम्पलीफाई होती रहती है, गांव से शहर के अंदर, गांव से फिर टाउन्स में, टाउन से सबर्ब में, अब से फिर अर्बन लेवल पे, फिर रीजनल पॉलिटिक्स से लेकर नेशनल पॉलिटिक्स तक. तो यहाँ पे यही आइडिया जो है, विच वॉज highlighted by Tocqueville, that if a state is created as a separate task, then the majority would likely to taste that superior hierarchical position, and in that greed for power hierarchy, it is likely to trample upon the rights of the minority. So इसीलिए minorities के rights protect करने की जरूरत है. क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज ले रहे हैं, इफ आर टॉकिंग अबाउट द की टेनेट्स ऑफ लिबरलिज्म, तो यहाँ पे फिर इंडिविजुअल को राइट्स देना जरूरी है. तो फिर माइनॉरिटी भी तो इंडिविजुअल्स है. एनीवे, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोर प्रिंसिपल्स. द फर्स्ट core principle of liberal constitutionalism, not of liberalism as a political philosophy. It is about liberal rule of law. So in this liberal rule of law, the government, the state power should be limited. तो उसका रीजन ये है कि अगर स्टेट को अनलिमिटेड पावर दी, सो उसकी वजह से इंडिविजुअल राइट्स जो हैं वो खतरे में आ जाएंगे. तो ये तो बिल्कुल लॉजिकल चीज है, क्योंकि फर्स्ट, लिबरलिज्म जो है इटसेल्फ इज बेस्ड ऑन लॉजिक, रीजन, रैशनैलिटी, एनलाइटमेंट आइडियल. और सेकंड चीज है, जब हम इंडिविजुअल्स की बात करेंगे तो हम स्टेट को अनरिस्ट्रेन पावर नहीं दे सकते. अनरिस्ट्रेन, या फिर हम उसको रीजनेबली भी, या कह सकते हैं रीजनेबली सुपीरियर पावर नहीं दे सकते हैं, इवन फॉर
द रियलिस्ट थिंक कि स्टेट प्रोटेक्शन जरूरी है, नेशनल सिक्योरिटी जरूरी है। क्योंकि होता क्या है, नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज के जरिए या फिर इमिनेंट थ्रेट टू द डिग्निटी और द इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, स्टेट उस प्रोविजन को इंडिविजुअल के खिलाफ यूज करेगा। So, I'm talking about the sedition law. I'm talking about this imposition of national security clause, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो है वो फिर उनकी फ्रीडम खतरे में आ जाती है। और यहाँ पे सेकंड लॉजिक ये भी है कि पावर इज इनहेरेंटली प्रोन टू अब्यूज, जो लॉजिक अभी आपको बताया है कि स्टेट को अगर एक्स्ट्रा पावर देंगे तो स्टेट उसको इंडिविजुअल के खिलाफ ही यूज करेगा। क्योंकि अगर स्टेट लिमिटेड है तो यानी जो इंडिविजुअल्स हैं दे विल लाइकली टू क्लेमर अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूइंग ऑफ द स्टेट, कि स्टेट क्या कर रहा है, तो स्टेट अगर गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ बोलेंगे। और अगर बोलेंगे then state has to walk on its own toe. State has to mend its way. State has to keep its power limited. Or फिर again, we, the Homo sapiens, we have borrowed this idea from our cousins, chimpanzees, the greed for power, the lust for power hierarchy. So उसमें state यानी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स जिनके पास इतने सारी पावर्स हैं, जिनके पास नेशन के रिसोर्सेज हैं, वो अपने आप को इंडिविजुअल के सामने बराबर कैसे रखेंगे। सो दैट आइडिया डजंट फिल, डजंट काउंट एज दैट प्रिविलेज। तो उसमें वो फिर वो उस पावर को अब्यूज करने की कोशिश करेंगे, मिसयूज करने की कोशिश करेंगे। सो उसको रोकने के लिए फर्स्ट आइडिया ऑफ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज टू लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट। सो यहाँ पे फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन्स होते हैं उनके अंदर स्टेट पावर जो है उस पर लिमिटेशंस होती है, और साथ में प्रोसीजरल चेक्स जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ प्लस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसका मतलब है कि कोई भी काम जो है वो करने के लिए एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना जरूरी है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैव इंटीग्रेटेड दिस जुडिशियल रिव्यू के साथ में पावर वो स्टेट अथॉरिटी यानी एग्जीक्यूटिव के पास कॉन्सेंट्रेट करने की जगह इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजॉन्टली अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर साथ में जो पिछले वाले चैप्टर जुडिशियल इंडिपेंडेंस में आपको बताया था दैट जुडिशरी इज अ टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज देयर टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ रहेगा तब जुडिशरी रहेगी ना, क्योंकि लॉ एंड जुडिशरी बोथ आर इंटीग्रेटेड इन अ क्लोज लूप। सो जुडिशरी का पहला ही काम यही रहेगा कि टू प्रोटेक्ट, टू एक्ट एज अ गार्डियन ऑफ रूल ऑफ लॉ। सो जब भी ऐसा कुछ एंक्रोचमेंट होगा, जब भी लेजिस्लेटर या एग्जीक्यूटिव वो कॉन्स्टिट्यूशन को या रूल ऑफ लॉ को वो दबाने की कोशिश करेंगे, किसी की फ्रीडम को दबाने की कोशिश करेंगे, सो देयर इन जुडिशरी will have this power of judicial review, जिसके जरिए किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन, किसी भी लेजिस्लेटिव बिजनेस, किसी भी लेजिस्लेटिव एक्शन, इनको वो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल के सामने रख के देख सकता है कि whether they meet the constitutional scrutiny। फिर जैसे यहाँ पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी के, सबके पास ये पावर है, इंक्लूडिंग आवर ओन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो सब ने जो जितने भी कॉन्ट्रडिक्टरी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस हैं, लाइक द अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, उन सबको फिर रिजेक्ट किया है। फिर सेकंड टेनेट की बात करें, इट इज अबाउट फंडामेंटल राइट्स। सो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो इंडिविजुअलिज्म प्रमोट करता है, इट ऑल्सो सेज कि इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिविजुअल का जो जिंदगी का मोटो है उसको बनाए रखने के लिए उसको वो लिबर्टी दी जानी चाहिए, क्योंकि बिना उस लिबर्टी के एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है, एंड बिना एक्सप्रेशन के जो क्रिएटिव पोटेंशियल है वो एक शेप नहीं ले पाएगा। तो उस क्रिएटिव पोटेंशियल को देने के लिए उनको कुछ बेसिक राइट्स देने पड़ेंगे, कुछ जरूरी जो लिबर्टी है वो देनी पड़ेगी। सो यहाँ पे जो जरूरी लिबर्टी है, जो बेसिक राइट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। एंड देन दीज राइट्स आर नॉट ओनली इनएलिएनेबल बट इनवायलेबल।
दोनों ही चीजें। इनएलियनेबल मीन्स अगर आप इंसान है तो, और इंसान है और उस पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन है, देन वो राइट्स आपको ऑटोमेटिकली आपको दिए जा रहे हैं बिकॉज यू आर एन इंडिविजुअल सिटीजन। फिर इनवायलेबल मीन्स उन राइट्स को कोई नहीं छीन सकता आपसे, कोई अदर इंडिविजुअल और स्टेट दोनों ही नहीं छीन सकते। सो वो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन वो आपको दिया हुआ है। और फिर इन्हीं राइट्स के अंदर अलग अलग राइट्स हैं, लाइक जैसे सिविल राइट्स हैं विच आर नेसेसरी फॉर पर्सनल ग्रोथ, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, एसोसिएशन है, प्रिवेसी है। फिर पोलिटिकल राइट्स हैं टू एंटर टू टेक पार्ट इन पोलिटिकल प्रोसेस, जैसे आप वोट कर सकते हैं, देन यू कैन एंटर द public office by contesting election, and you can become a part of governance either as a legislator or a bureaucrat, a government servant. And then there are social rights, which the welfareist right, which means you should have access to the basic amenities like education, healthcare, housing and work. क्योंकि अगर ये चीजें अगर नहीं मिली तो फिर इन सब का कोई सेंस ही नहीं है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, घर ही नहीं है, काम नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, सो फिर इन चीज़ों का अल्टीमेटली किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी रूल ऑफ लॉ, किसी भी फ्रेमवर्क में कोई सेंस नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। So negative liberty means restriction on the power of state to interfere in the individual sphere. So यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं negative liberty means limitations on the power of state. फिर पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर स्टेट को ये कहा गया है, स्टेट को ये डायरेक्टिव दिए गए हैं दैट दे शुड orient their potential, they should direct and redistribute their resources for meaningful purposes for welfare। कि यहाँ पे फिर वो जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें, जस्टिस, इक्वालिटी, वेलफेयर, एजुकेशन, प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, इन सबको ठीक करने की कोशिश करें। तो ये दोनों एलिमेंट्स हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टीज। और ये जो प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन है द लिबरल प्रिंसिपल का, वो इंडियन एंड साउथ अफ्रीकन सुप्रीम कोर्ट, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, दोनों ने ये चीज कही है दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ लॉ एंड it is not about fulfilling the latter part of that law, the latter part of constitution, because constitution itself is composed of letter and spirit। यानी आपको कॉमन सेंस, आपको वो जो उसकी स्पिरिट है, उसकी सोल है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है, एंड दैट सोल इज अ डायनामिक वन। So that's why our constitution in modern time, they have this flexibility, the fluid evolving interpretation that gives us a different edge, because we do not have to write a separate constitution for every upcoming age or every new technological breakthrough। वो flexibility, वो dynamism already दिया हुआ है। in latter part means जो चीज लिखी हुई है वो साथ में उसके स्पिरिट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जिस भी तरीके से लिखे गए हैं, साथ में उनमें बहुत सारा लीवे दिया हुआ है, बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है कि आने वाले वक्त में अगर कुछ चेंजेस हो तो उसको फिर पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर उसको बढ़ाया जाए। सो जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 21 है, सो इट्स द मोस्ट डायनामिक फंडामेंटल राइट, ये कह सकते हैं, राइट टू लाइफ। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस राइट को इंटरप्रेट करते हुए अब धीरे धीरे जैसे जैसे केसेस बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है, तो इसी फंडामेंटल राइट के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई। पहले सिर्फ इस राइट के अंदर लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी, ये बेसिक थिंग्स थी। अब इसमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू प्रिवेसी, जो रिसेंट पुट्टस्वामी जजमेंट है, और फिर आप देखते हैं दिवाली पे जो फायर क्रैकर वाला जजमेंट है, फिर स्कूल के आसपास जो वाइन शॉप्स है उनको लेकर है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको गुजरात गवर्नमेंट को कहा है कि आप एक किसी असिस्टेंट प्रोफेसर को आप 30K, 30,000 रुपए आप दे रहे हैं, मतलब ये चीजें हो रही है हमारी कंट्री में। तो मतलब they take the suo motu cognizance of the matter that go,
एंड उस कॉग्निजेंस में दे ट्राई टू instill that dynamism, the dynamism or the flexible interpretation that matches uh, with the upcoming traditions. फिर इसी डायनामिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बाद वी शुड कम अक्रॉस द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, जो कि लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का थर्ड टेनेट है. सो चेक्स एंड बैलेंसेस, यहाँ पे ये दो चीजें हैं. सो इसका मतलब, इन दोनों का अगर मतलब सेपरेटली देखें तो check means limitation on power, and then balances means equal distribution of power. तो यहाँ पे पावर जिनको भी दी गई है उनके बीच में पावर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, और साथ में किसी की भी पावर अनलिमिटेड नहीं है. सो दो तरह के चेक्स हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. सो हॉरिजॉन्टल चेक्स के अंदर स्टेट, it rests its authority on three recognized institutional pillars: legislature, executive and judiciary. और इन तीनों के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है. और फिर प्रिंसिपल ऑफ चेक्स विच मीन्स लिमिटेशन ऑन पावर. तो अगर इनमें से कोई भी अपनी पावर एनक्रोच करता है, पावर को, उसकी लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो दूसरा उसके लिए है, उस लिमिटेशन को मेंटेन रखने के लिए है. जैसे अभी आपको जुडिशियल रिव्यू का बताया आपको कि कोई लेजिस्लेटिव एक्शन है या एग्जीक्यूटिव एक्शन है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, देन जुडिशियल रिव्यू विल जंप इनटू द पिक्चर, और वो फिर उस प्रोविजन को, उस एक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर लेगा. फिर उसके साथ चेक्स एंड बैलेंसेस में और भी है, जैसे जुडिशरी का ट्रांसफर एंड प्रमोशंस जो हैं, दे आर हैंडल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव. फिर उसके बाद रिमूवल जो है जुडिशरी का, इट इज हैंडल्ड बाय द लेजिस्लेचर. सो इस तरह से ये तीनों जो है आपस में जुड़े हुए हैं. फिर वर्टिकल चेक्स की बात करते हैं तो पावर हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस लेवल्स. जो इंडियन गवर्नेंस सेटअप की बात करें तो यहाँ पे पावर यूनियन, स्टेट एंड लोकल लेवल, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है. और सिमिलरली यहीं पे फिर तीनों जो पिलर्स हैं वो हर जगह है. तो इस तरह से ये कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनली 3x3, यानी 9 डिफरेंट डोमेन्स के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है. बट ये तस्वीर यहीं पे खत्म नहीं होती. उसके साथ जो ये कह सकते हैं एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूशनल चेक्स हैं, जैसे सिविल सोसाइटी है, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिपेंडेंट कमीशंस हैं, मीडिया है, और इवन इंटरनेशनल ओपिनियन है, वो सब भी इस पावर फ्रेमवर्क को, इस पे लिमिट्स बनाए रखते हैं. फिर बात करते हैं ग्लोबल केस स्टडीज की. सो जैसे ईस्टर्न यूरोप में, सो आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिज्म, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूरोप के अंदर, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों के अंदर ये लिबरल फ्रेमवर्क या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो स्टैब्लिश किया गया. ईस्टर्न यूरोप में थोड़ा लेट आया, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज जो है दे वर ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत कम्युनिज्म. फिर जब ये कम्युनिज्म खत्म हो गया तो उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज जो है ईस्टर्न यूरोप की, दे अडॉप्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. लेकिन अभी इन दोनों ही कंट्री में, पोलैंड एंड हंगरी, दोनों के अंदर पॉपुलिस्ट मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो वहां पे आ रहा है. फिर लैटिन अमेरिका की बात करें तो चिली, ब्राजील, कोलंबिया, इन सब ये जो कंट्रीज हैं, दे आल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. फिर एशिया की बात करते हैं तो इंडिया हो गया. इंडिया के अलावा अगर हम कह सकते हैं कि आसपास की जो ज्यादातर कंट्री है, दे हैव एक्सपेरिमेंटेड दिस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. श्रीलंका की बात कर सकते हैं, बांग्लादेश की बात कर सकते हैं, और इवन ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, जो आइलैंड कंट्रीज हैं, आइलैंड आर्किपेलागोस हैं, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है उनको उनके साथ टचअप करने की कोशिश की है. फिर अफ्रीका के अंदर भी जो पोस्ट अपार्थाइड, जो कह सकते हैं पोस्ट कॉलोनियल एंड पोस्ट अपार्थाइड, दोनों अलग अलग फेज हैं. मतलब पहले तो वो
यहाँ पे जो कॉलोनियल पावर्स जो है उनसे फ्री हुए। उसके बाद फिर जो रेसिज्म चल रहा था ओवर्ट एंड कोवर्ट, उससे फ्री हुए। तो उसके बाद फिर बहुत सारी जो अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, दे एम्ब्रेस द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स। सो एक तरह से यूनिवर्सल तो नहीं कह सकते, बट देन इट्स अ नियर यूनिवर्सल एम्ब्रेस ऑफ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जो हर जगह दिख रहे हैं। फिर बात करते हैं इस इन आइडिया की, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, विच इज द बिलीफ इन रूल ऑफ लॉ ऑन द bedrock ऑफ लिबरल प्रिंसिपल। सो पहला जो खतरा है, इट इज ऑफ राइज ऑफ पॉपुलिज्म। सो यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए पहले इसका जो बेसिक टेनेट है वो देखते हैं। सो यहाँ पे बेसिक टेनेट इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और यहाँ पे मैं इन दोनों का ही एक कोर आइडिया देता हूँ। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ से ज्यादा कुछ नहीं होगा। लॉ यानी कानून से बढ़कर कोई नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। फिर लिबरल प्रिंसिपल, इट सेज कि इंडिविजुअल इज द फॉरमोस्ट अथॉरिटी। सो जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, दैट रूल ऑफ लॉ विच इज कानून, विच इज लॉ, सो लॉ will be equal among all individuals and law will deliberately protect the individual life। और फिर इस तरह से एक वर्चुअस लूप क्रिएट होगा बिटवीन इंडिविजुअल लाइफ एंड दैट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो ये बेसिक आइडिया है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। सो अब जो रिसेंटली देख रहे हैं, दी राइजिंग टेंडेंसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, फासिज्म, नियर फासिज्म, ऑल ट्रुथ, और ये कह सकते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज। सो इन सब में क्या हो रहा है कि जो कोर टेनेट्स जो हैं, दे आर बीइंग टेस्टेड इन द हीट ऑफ द न्यूअर नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशंस। कि अब हर कंट्री के अंदर जो लीडर्स जो है, दे आर क्लेमिंग दैट दे हैव द they have their reigns on the people's will। Now, इसको समझाने के लिए दूसरे तरीके से देखते हैं। जस्ट इमेजिन एक कंट्री है, और वो कंट्री वो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर वो स्टैब्लिश है, यानी इंडिविजुअल राइट्स जो है दे आर वेल प्रोटेक्टेड एंड रूल ऑफ लॉ इज देयर। अब इन दोनों बेसिस पे जो कंट्री के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, है ना, अदर लीडर्स हो, मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हो, बिजनेस टाइकून्स हो, या फिर स्ट्रीट वेंडर्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, डिप्लोमेट्स हो, या फिर प्रोफेशनल्स हो, सेमी स्किल्ड पर्सन्स हो, सब के सब दे आर इक्वल in that constitutional framework, they are equal in the before the rule of law। तो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो ये कहता है कि हर एक को अपनी जिंदगी का अधिकार है और हर एक की जिंदगी कानून के सामने बराबर है। नाउ यहाँ पे दे कम्स अ ट्विस्ट कि ड्यू टू द प्रेसिंग टाइम्स, यहाँ पे उसी इसी फ्रेमवर्क के अंदर सम पीपल दे टेक अप मोर पावर। तो यहाँ पे एक पावर डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया कि कुछ लीडर्स जो है दे स्टार्टेड गेनिंग मोर ट्रैक्शन अमंग पीपल, सो वी कॉल देम पॉपुलिस्ट लीडर, पॉपुलर लीडर। अब यहाँ पे ये लीडर्स जो है दे रिजॉर्ट टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मीन्स अब जो स्टेट जो है, it is not made up of individuals, but it is made up of different polarized groups, different demands which cannot be met। तो यहाँ पे फिर different poles create होते हैं, जैसे हिंदूज, मुस्लिम्स, whites, then blacks, फिर immigrants, फिर minorities। सो इस तरह से minority, majority, ये डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट हो गए, और इन्हीं ग्रुप्स के बीच में अब पावर जो है वो उसको लेकर टसल चल रही है। सो यहाँ पे जो पॉपुलिस्ट लीडर्स जो है, ये उनमें से ही किसी एक ग्रुप की साइड लेते हैं और पावर अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। तो उसके साथ ही जो लिबरल फ्रेमवर्क जो है, इट कम्स अंडर थ्रेट, क्योंकि
ना सिर्फ जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, जो इंडिविजुअलिटी है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, वो खत्म हो गई, बल्कि सोसाइटी हैज आल्सो कॉर्नर्ड इटसेल्फ इनटू मल्टीपल पोल्स, एंड नाउ दोज मल्टीपल पोल्स दे आर कंटेंडिंग फॉर पावर, और हर एक पोल के पास उतनी पावर नहीं है। माइनॉरिटीज की बात करें, मार्जिनलाइज वॉइसेस की बात करें, तो यहीं पे अगर हम यहाँ पे आइडियाज लें, तो इंडिया में बात करें कि हिंदूज के अंदर भी फिर जो एससीज हैं वो मार्जिन्स पे हैं, एसटीज मार्जिन्स पे हैं, जो पुअर है वो मार्जिन्स पे हैं। तो यहाँ पे ये चीजें तो और ज्यादा मार्जिनलाइज हो गई। ये पीपल जो है दे विल नेवर हैव द सेम वॉइस, सेम पॉलिटिकल कैपिटल टू compete अगेंस्ट द मेजॉरिटी वॉइसेस। सो यही जो नर्व जो है ये पॉपुलिस्ट लीडर्स फॉलो करते हैं, और अल्टीमेटली जो फ्रेमवर्क निकल के आता है, जो स्टेट निकल के आता है, इट इज एन अथॉरिटेरियन वन। फिर जो पॉपुलिस्ट लीडर्स जो है दे अटैक इंडिपेंडेंट जुडिशरीज। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन जो सामने आता है कि ओके, द populist leaders are there, and then those populace have the numerical majority in their own legislature. Now, अगर उनके पास majority है, then why don't they shred the constitution into pieces or throw it down the gutter and just establish themselves as a tyrant? Because they have manipulated people. First, they do not have the authentic power. Their power rests on manipulation. So even if they have the majority, वो constitution नहीं फाड़ सकते या वो constitution नहीं change कर सकते, because in that way they will expose themselves, they will expose their folly कि हम लोग constitution को protect करने की जगह हम यहाँ पे सबको खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि फिर यही जो मेजोरिटी है, जो स्टेट मेजोरिटी है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कह सकते हैं जो पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, वो तो थोड़े से लोग हैं, है ना। इंडियन केस में बात करें तो 545 इधर, देन 250 इधर, बस इतने ही लोग हैं, और कुछ हैंडफुल ब्यूरोक्रेट्स वो मान लो। बाकी उसके अलावा तो द पीपल दे आर क्लेमिंग द मेजोरिटी ऑफ, जिस भी ग्रुप को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो मिलियंस के अंदर है ना। अब यहाँ पे अगर वो अगर खुद को एक्सपोज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ देते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करते हैं, तो ये जो मिलियंस जो है उनको पता है कि अब बारी उनकी है। सो इसलिए वो यहाँ पे ये चीज डायरेक्टली नहीं कर सकते। एंड सेकंड चीज है दैट अभी आपको बताया, दैट दिस आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इट हैज अ टेक्निकल गार्डियन। ये मैं बार बार कहता रहता हूं, टेक्निकल गार्डियन ये दो चीजें हैं। फर्स्ट, जुडिशरी ये एक जनरलिस्ट ब्रांच नहीं है, ये एक स्पेशलिस्ट या टेक्निकल ब्रांच है। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ क्रिएटेड जुडिशरी सो दैट इट कैन एक्ट एज अ गार्डियन। इट, क्योंकि रूल ऑफ लॉ तभी तक रहेगा जब तक जुडिशरी रहेगी और जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि जुडिशरी अल्टीमेट, जुडिशरी का अपना जो एग्जिस्टेंस है वो इस रूल ऑफ लॉ पे है। सो यहाँ पे ये जो मेजोरिटेरियन रूलर्स जो हैं ये उन इंडिपेंडेंट जुडिशरी को अटैक करते हैं, क्योंकि ये मेजोरिटी अगर कुछ भी ऐसा करेगी विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स, देन जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उन एक्शंस को, उन बिहेवियर्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर लेंगे। इसलिए ये लोग इस पे अटैक करते हैं। देन दे मैनिपुलेट इलेक्टोरल लॉज। फिर अगेन यहाँ पे जो डायरेक्ट मैनिपुलेशन नहीं है, तो डायरेक्ट इन जो इलेक्शन कमीशंस जो हैं या इंडिपेंडेंट कमीशन जो हैं उनको वो डायरेक्टली थ्रेटन नहीं कर सकते, बूथ कैप्चरिंग वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, अगेन द फियर ऑफ एक्सपोजर। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, जो इलेक्टोरल लॉज जो है उनको मैनिपुलेट करके अपनी पावर बनाए रखते हैं। जैसे जो इंडियन केस में बात करें तो जो पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर रूल है वो, फिर उसके बाद जो मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, उनको वो है ना दबा के रखते हैं। सिमिलरली वो जो नेशनलिस्ट रूल है, नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज हो गए, सेडिशन हो गए, और फिर उसके बाद जितनी भी माइनॉरिटीज है उनको मार्जिनलाइज करते हैं, ताकि पावर जो है अल्टीमेटली उसी ग्रुप के पास कॉन्सेंट्रेट रहे इन द नेम ऑफ पॉपुलिज्म। सो ये टोटल जो सिनेरियो आपको दिख रहा है, पहले जो जो इंडिविजुअल्स हैं विद सेम idea of their own individualism, same idea of their own power, and then that of rule of law.
तो ऐसे जो अवेयर सिटीजन्स हैं, ये कह सकते हैं पोलिटिकली अवेयर सिटीजन्स, उन सबको वो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर पोलराइज करते हैं। देन उन ग्रुप्स को वो मैनिपुलेट करते हैं कि ये सही है, ये गलत है, हम इनके साथ है, इनके लिए ये वो है। यहाँ पे फिर वो फ्रिक्शंस क्रिएट करते हैं, और यूजुअली वो पोलराइजेशन जो होता है वो वीक कम्युनिटीज के लिए ही होता है। जैसे इंडिया में हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, या हिंदू वर्सेस SC ST है, तो यही बाहर जो है लोकल वर्सेस जो इमिग्रेंट्स है उनके लिए है, वाइट वर्सेस ब्लैक के लिए है ना। द लोकल जो नेटिव्स हैं, ये कह सकते हैं जसौली, तो जो सन ऑफ सॉइल है वर्सेस आउटसाइडर है, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर। तो इस तरह से हर जगह पे ये पोलराइजेशन होता है, और बाद में फिर ये सब चीजें, एंड ऑल ऑफ देम दे कैन बी क्लब्ड अंडर द आइडिया ऑफ इलिबरल डेमोक्रेसी। फिर जो सेकंड जो खतरा है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, इट इज द यूज ऑफ इमरजेंसी पावर एंड सिक्योरिटी कांसेप्ट्स। सो ये होता है that every constitution has some space for those emergency times, those pressing times, या contingent times. So उसमें फिर emergency power दी गई है, pandemics, terrorism, climate emergencies, if the security, the finances, the integrity of nation under threat. So उन सब पे ये emergencies हैं। इंडिया में जैसे 352, 356 एंड 360, तो ये तीनों इमरजेंसीज हैं। अब साथ में फिर नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज भी हैं। अब ये है कि ये चीजें जो है ये कंटिंजेंट टाइम्स के लिए होती है, उन टाइम्स के लिए जब जहां पे इनका यूज जरूरी है। लेकिन अगर यही इन जो इमरजेंसी पावर्स हैं, इनको फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वेज में अगर यूज किया जाए, जैसे सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी। नाउ इसका आइडिया ये है कि हमारे पास प्रिवेंटिव पावर है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द प्रिवेंटिव पावर टू द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी टू स्टॉप एनी मेजर कैलेमिटी फ्रॉम हैपनिंग। तो मैं यहाँ पे टेररिज्म की बात कर रहा हूँ कि बम फूटने से पहले उसको रोक सकते हो तो रोक लो। तो ये तो अच्छी बात है। अगर कोई टेररिस्ट बम धमाका करना चाह रहा है, और अगर पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उसको पकड़ के अगर उस अटैक को रोक सके, तो बहुत सारी जो लॉस है स्पेशली ऑफ आर डियर वंस, वो रोका जा सकता है। तो एक अच्छा अच्छा क्लॉज है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो पॉसिबल टारगेट्स जो हैं उनको सर्वेल करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वो एक इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी है, क्योंकि हर कोई एक पॉसिबल टारगेट नहीं है। फिर अगर यहीं पे इसी आइडिया को मैनिपुलेट कर लें, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन तो आराम से बम बना रहे हैं, फोड़ रहे हैं। यहाँ पे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हर वो जो गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए खतरा है, वो सब लोग जो है अब सर्वेलेंस पे उनको डाल दिया है कि उनके फोन टैप्स हो रहे हैं, कौन उनके घर में आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उनका सोशल मीडिया अकाउंट, उनके कंप्यूटर्स के अंदर ट्रोजन हॉर्सेस जो हैं, या जो बैकडोर एंट्रीज जो हैं वो उनमें इंस्टॉल कर दी गई है। मॉलवेयर, स्पैमवेयर जो है वो इंस्टॉल कर दिए हैं, जैसे वो पैगासस वाला आया था। तो अब ये सर्विलेंस टेक्नोलॉजी जो है ये गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए यूज करती है, तो ये भी एक गलत चीज है। फिर लॉकडाउन रेगुलेशंस, सो पैंडेमिक्स के दौरान या फिर किसी भी सिक्योरिटी थ्रेट में, यहाँ पे लॉकडाउन रेगुलेशन को आप यहाँ पे IPC सेक्शन 144 की तरह देख सकते हैं। सो ये लॉकडाउन में सब लोगों ने ये चीज देखी होगी, सेक्शन 144, कि यहाँ पे जो लोकल मजिस्ट्रेट होता है या लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उनको पावर होती है कि अगर कोई चीज आपको सही नहीं दिख रही है, देन यू कैन प्रिवेंट द असेंबली ऑफ पीपल। तो अब ये 144 लगा के बहुत बार वो इंटरनेट बंद कर देते हैं, असेंबली बंद कर देते हैं, कर्फ्यू लगा देते हैं। और फिर नेक्स्ट जो आता है काउंटर टेरर लॉज। सो काउंटर टेरर लॉज अगेन इज अ पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो यहाँ पे वो पावर टेररिस्ट पे यूज करने की जगह यहाँ पे वो अगेन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे यूज किया जा रहा है। और इवन इफ इट इज यूज्ड in those area where the crime, the political crime or terrorism is rampant, यहाँ पे जहाँ पे इंसर्जेंसी है, तो फिर अगेन उन पे ह्यूमन राइट अब्यूसेस हैं, क्योंकि वो एक तरह से एक ब्लैंकेट इम्पोजिशन है
जैसे मणिपुर के अंदर हो गया, अरुणाचल के अंदर हो गया, जम्मू कश्मीर के अंदर हो गया, नक्सल एरियाज के अंदर हो गया। तो जब आपको पता ही नहीं है कौन इंसर्जेंट है, कौन ब्लास्ट कर सकता है, कौन जो है स्टेट के खिलाफ एक थ्रेट है, तो लाजमी है कि आप उस चीज को पूरे पे लागू कर दो। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ पे एक ये लगा दो, है ना, एंटी टेरर लॉ लगा दो, अप्सपा लगा दो, ये सब। बट देन फिर उसमें ये होता है कि कितने टाइम तक वो रहेगा, फिर क्या वहां पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अकाउंटेबल है? क्योंकि हर किसी को समझ में आता है कि जो गलत आदमी अगर वो सिक्योरिटी स्किर्मिशेस के दौरान या जो मिलिट्री फेस ऑफ के दौरान अगर वो मर जाते हैं, देन वी अंडरस्टैंड कि हाँ, a threat has been eliminated। लेकिन अगर उनकी जगह पे आप वही चीज ह्यूमन राइट एब्यूसेस में यूज करते हैं, वहाँ पे गांव वालों का रेप हो रहा है, जो वहाँ पे जो लेडीज जो है वो अब उनकी प्राइवेट लाइफ खत्म हो गई है, इसी काउंटर टेररिस्ट लॉ या फिर इसी ब्लैंकेट इम्पोजिशन की वजह से फिर वहाँ पे आप लोगों को मॉलेस्ट कर रहे हैं, यू आर एक्सटॉर्टिंग मनी, देन सिक्योरिटी एजेंसीज दे कल्यूड विद द जो स्मगलर्स हो गए या फिर जो बिजनेस टाइकून्स हो गए, उनके साथ आप फिर एक आपकी अलग ही पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। तो ये सब चीजें भी फिर लिबरल फ्रेमवर्क से अलग हो जाती है। और फिर फाइनली ये भी है कि जो टेम्पररी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो देन दे परमानेंट, वो दे बिकम परमानेंट। तो इसका आइडिया यही है कि अगर बार बार इमरजेंसी लगती रहती है या ये एक लंबे टाइम तक इमरजेंसी लगी रहती है, तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज जो है वो फिर दे बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। कि अगर इमरजेंसी इतने टाइम से चल रही है, ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं या सिक्योरिटी क्लॉजेस जो हैं वो इतना वेहेमेंटली या इतना ब्रॉडली यूज हो रहा है कि अब आपको वो चीज जो है यू टेक इट फॉर, you assume it as a natural part of existence, a natural part of political existence। जो एक टाइम पे जो स्टालिन रेजीम थी उसके अंदर भी यही चल रहा था। एंड इफ यू नो अबाउट दिस नॉवल रिटन बाय जॉर्ज ऑवेल, सो उस नॉवेल के अंदर भी यही चीज है, 1984। तो ये नॉवेल हो सकोगे, और या फिर आप जो विक्टर फ्रैंकल है उसका नॉवेल लिख सकते हैं, तो उनके अंदर भी यही चीज लिखी हुई है। कि किस तरह से यही जो और जो इमरजेंसी पावर्स जो हैं, जो ये टेरर साइलेंसिंग मेजर्स हैं, दे बिकम नेचुरल। और फिर जब वो नेचुरल हो जाते हैं तो लोग फिर भूल ही जाते हैं कि असल में फ्रीडम क्या होती है। फिर जो आज का ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल एरा, साइबर वर्ल्ड है, उसमें जो प्राइवेट टेक जायंट्स जो हैं, दे स्टार्टेड accumulating enormous power at the cost of individual privacy। तो यहाँ पे ये है कि जिस तरह से एक फिजिकल वर्ल्ड होता है, एक सिंपल सिनेरियो बता रहा हूँ, दीज आर टू वर्ल्ड्स, ये है फिजिकल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड, ये है वर्चुअल वर्ल्ड, द डिजिटल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्सेस रियल, वर्चुअल एंड डिजिटल वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे घर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स हैं, रियल इमोशंस हैं, रियल इंटरेक्शंस हैं, तो सब कुछ यहाँ पे रियल है। आप लोगों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं। तो अगर आप आप कहीं पे जैसे कह सकते हैं कि आपका बेडरूम है, अब वो बेडरूम आपका प्राइवेट एरिया है। अब वहां पे अगर उसी बेडरूम में 10 लोग आके वहां पे बैठ जाए और अपनी बातें करें और वो अपना, है ना, जो भी उनकी पार्टी वार्टी है वो शुरू कर दे, तो वो फिर आपको एक इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी होगा। सिमिलरली वर्चुअल वर्ल्ड भी एक ऐसा ही, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ प्राइवेट वर्ल्ड। एक्सटेंशन मीन्स कि जो साइकोलॉजी है, जो ह्यूमन ब्रेन है, सो ह्यूमन ब्रेन हैज नो लिमिट्स व्हाटसोएवर। एटलीस्ट जब तक हमारी रीच की बात करते हैं। सो यहाँ पे हमारे जो ब्रेन की जो परसेप्शंस हैं, हम उनको इन्फ्लेट कर सकते हैं। राइट नाउ अगर मैं कहूँ मैं अपना हाथ लंबा कर दूं तो नहीं हो सकता। बट देन अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने हाथ से 10 किलोमीटर दूर किसी पेड़ की पत्तियां तोड़ रहा हूँ, तो वो चीज साइकोलॉजिकली पॉसिबल है। दैट परसेप्शन, द वर्चुअल परसेप्शन इज पॉसिबल, सो दैट इट इज साइकोलॉजिकल इन्फ्लेशन। And that psychological inflation is what exactly what virtual world is।
सो हम वहां पे वो चीज कर सकते हैं। सो वो जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो भी हमारा एक पार्ट है, बट देन हम समझते हैं कि यस, इट्स अ ड्रीम काइंड ऑफ सिचुएशन। बट अब यह है कि रिसेंटली इसी वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीजें होने लग गई। वी आर स्टिल टेकिंग रियल इमोशनल कॉग्निजेंस ऑफ दिस वर्चुअल वर्ल्ड। तो हम यहाँ पे अपने जो फाइनेंसेस हैं वो इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। फिर हमारी जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो हमारी यहाँ पे सिचुएटेड है। जो इंटरेक्शंस हैं वो अब इस वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहे हैं। फिर वी आर ए आर आने के बाद हम उसी इंटरेक्शन में थोड़ा और आगे जा रहे हैं। फिर वेब थ्रीज की बात करते हैं, डार्क वेब की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वी आर लिविंग अ नियर फिजिकल लिविंग इन अ नियर फिजिकल सिचुएशन। पर फिजिकल वर्ल्ड में हमारे पास आर्मी है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास जुडिशरी है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। बट एक ऐसे ही नियर फिजिकल वर्ल्ड विच इज इन्फ्लेटिंग, विच इज बलूनिंग बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन। क्योंकि मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे एक ताइवानीज का वर्चुअल वर्ल्ड कितना बड़ा है। यहीं पे एक ताइवानीज को नहीं पता है कि एक साइबेरियन फार्मर एंड देन एक साइबेरियन राइटर, उनका वर्चुअल वर्ल्ड कितना बड़ा है। और सिमिलरली एक साइबेरियन राइटर को नहीं पता कि जो अंटार्कटिका में जो मिशन चल रहे हैं, उस मिशन पे जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं या जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में है, उनका वर्चुअल वर्ल्ड किस तरह से काम कर रहा है। सो वी आर साइकोलॉजिकली in hyper inflated territory. So ऐसे में यहाँ पे regulations तो होने चाहिए ना। A thing that is ballooning out of a hand without any regulation, और उसी लूप होल, उसी लैक ऑफ पॉलिटिकल रेगुलेशन, उसका फायदा उठा रहे हैं प्राइवेट टेक जायंट्स, जिनके पास सब पावर्स है कि अब वर्चुअल वर्ल्ड में जिस तरह से फिजिकल वर्ल्ड में हमारे एड्रेसेस हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में जो भी एड्रेसेस हैं वो इनके पास है। फिर फिजिकल वर्ल्ड में जो भी कम्युनिकेशन होता है, वो जो भी इंटरेक्शंस हैं, सिमिलर इंटरेक्शन वर्चुअल वर्ल्ड में जब भी होते हैं, उनके रिकॉर्ड्स इनके पास है। तो यहाँ पे उसके सेफ गार्ड्स नहीं है, और जब तक सेफ गार्ड नहीं है, इट इज अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ आवर प्रिवेसी। फिर अब बात करते हैं रेजिलियंस एंड रिन्यूअल की। देन वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऑफ एनी काइंड, दे आर रेजिलियंट बिकॉज yes, people learn it late, but they they learn it always. People jump back, people revolt. ये टाइम एंड अगेन वी हैव सीन कि लोगों को ज्यादा टाइम तक अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। ये हम इसी इसी वीडियो के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर मिडिवल जो रिवॉल्ट हुई थी, द एनलाइटमेंट, उसके बाद अमेरिकन, द फ्रेंच वन, जो फिर अब मैंने आपको एंटी कॉलोनियल उनके बारे में भी बताया था। फिर पोस्ट अपेर्थाइड रेजिम्स है, उनके अंदर भी रिवॉल्ट्स आज भी चल रही है। तो यस, वी ऑलवेज जंप बैक टू आवर फीट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वो भी है कि जो कोर्ट्स जो है, दे टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑल एवरीथिंग दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर सिविल सोसाइटी हमेशा रेजिलियंट है, क्योंकि बच्चे पैदा होते रहते हैं, बच्चे पैदा होकर फिर वो यूथ होते रहते हैं, यूथ होकर फिर वो एक्टिविस्ट बन जाते हैं, समटाइम एनिमल एक्टिविस्ट, समटाइम डिजिटल एक्टिविस्ट, समटाइम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। बट ऑल ऑफ देम, they actively espouse, they actively fight for what is sacred. So ये चीजें हैं, और आई एम गोइंग टू एंड इट हियर। फिर ऐसा कुछ है जो आपको आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं, आपके पास कमेंट एंड कम्युनिटी सेक्शन है। एंड यहाँ पे मैं अब ये चीज कहना चाहूंगा कि सो फार आई हैव रिकॉर्डेड 235 hours वर्थ ऑफ लेक्चर्स। सो यहाँ पे मैं ये चीज आपसे कहना चाहूंगा कि नाउ यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग, बिकॉज इन एनी वे मुझे तो आगे रिकॉर्ड करना ही है। ये खत्म करके फिर मुझे और भी सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। तो ये कह सकते हैं, ये जो फिल्म है ये तो चलती रहेगी। बट एक जो पर्सनल बॉन्ड जो है, बिकॉज आई एम ए ह्यूमन एंड आई बिलीव इट, कि पर्सनल बॉन्ड जो है दे मैटर अ लॉट। ये तो अब ये सब डिजिटल रेवोल्यूशन होने की वजह से मुझे फिजिकल क्लासेस से डिजिटल क्लासेस में आना पड़ा है, बट अदरवाइज आई लव फिजिकल क्लासेस।
सो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो, और अपॉर्चुनिटी ना भी हो, तो यहाँ भी अगर इंटरेक्शन हो सके थ्रू कमेंट सेक्शन, कम्युनिटी सेक्शन, और अगर आप चाहें तो यू कैन कम अप विद योर सजेशन, यू कैन मेक अप योर ओन ग्रुप्स. सो कोई भी तरीका हो, बट yes, I want to feel that again, that physical touch. So this is it. Thank you.